فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم دوستوں، پچھلے پارٹس میں ہم نے اس ٹریپ کے پورے پروسیس اور میکینزم کو تفصیل سے جانا اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ ایک دجالی فتنہ ہے اور اس فتنے کو ورلڈ لیول پر الومیناتی یا سیکرٹ سوسائٹیز کی طرف سے پلان اور پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں کئی ملکوں کی گورنمنٹس بھی جانے انجانے میں ان شیطانوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے ایک بولی والی بچی کو اس ٹریپ میں پھنسایا جاتا ہے اور اخیر میں اس کی زندگی کو ختم کر دیا جاتا ہے یا دوزخ بنا دیا جاتا ہے اور اس طرح سے پورا خاندان برباد کر دیا جاتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہر شخص آگے آ کر اس فتنے کا مقابلہ کرے، ورنہ اس کی ہولناکی پوری انسانیت کو شیطان بنا کر رکھ دے گی۔ اس پارٹ میں ہم اس ٹریپ سے بچنے کی تدابیر پر روشنی ڈالیں گے اور اخیر میں ہندوستان کی ایک مشہور اور معروف شخصیت کا آپ حضرات کے لیے خاص پیغام بھی پیش کریں گے۔ اب اس ٹریپ کی ہر قسم، جیسے پہلی اسٹیج سے لے کر آخری اسٹیج تک جس بھی اسٹیج میں بچیاں پہنچ چکی ہیں، ان سے بچنے کی تدابیر پر سلسلہ وار طریقے سے روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی اپنا بھائی نہیں بنانا ہے۔ Be straightforward while talking with strangers۔ اجنبی سے بات کرتے وقت مزاج میں سختی کے ساتھ اور to the point بات کریں۔ کنورسیشنز میں بے وجہ کے گریٹنگز کو اوائڈ کریں۔ فون پر، اسکول میں، کالج میں، کوچنگ میں، دکاندار سے، سبزی والے وغیرہ سے صرف کام کی بات کریں اور ان لوگوں کے کسی بھی غیر ضروری سوال کو اگنور کریں۔ ہمیں بدتمیزی نہیں کرنا ہے لیکن اگنور کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کو سختی سے چھوڑ دیجئے، اس سے کئی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن ٹاپکس ریلیشن میں اتنا جان لیں کہ ٹریپ کرنے کا سب سے آسان اور وائڈلی یوز طریقہ ہے اپنے سگے رشتہ دار کے علاوہ کسی کے بھی ساتھ ویڈیو کال پر بات یا اپنے فوٹوز شیئر نہ کریں۔ آج کے AI کے دور میں آپ کے ویڈیوز اور فوٹوز کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا اسے کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک بار اگر آپ نے کسی فوٹو یا ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا تو وہ فوٹو اب تک قیامت انٹرنیٹ پر رہے گا، نو میٹر کہ آپ نے اسے اپنے ID یا پروفائل سے ڈیلیٹ کر دیا ہو۔ وہ فوٹو یا ویڈیو کبھی بھی کہیں سے بھی ریٹرائیو کیے جا سکتے ہیں اور جیسا چاہے ویسا استعمال میں لیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی طرح کے پرسنل انفارمیشن فارم کو بھرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ اس کا سورس اوتھینٹک ہے یا نہیں۔ کسی انعام کے لالچ میں کبھی اپنی ڈیٹیلز کسی سے شیئر نہ کریں۔ اسکول، کالجز یا کوچنگ میں اگر اس طرح کا فارم بھروایا جا رہا ہے تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس فارم کو بھرنا کیا واقعی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اگر ہے تو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہمیشہ اپنے والد یا بھائی کی ڈالیں۔ آپ کا پرسنل نمبر آپ کے گھر والوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کی سہیلیوں تک کے پاس بھی نہیں۔ حجاب کو اپنی لائف سٹائل میں داخل کریں۔ حجاب آپ کو کئی طرح کے فتنوں سے بچاتا ہے اور غیروں کے دل میں آپ کا رعب اور عزت بھی بڑھاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ پریشیس ہیں، کسی کے لیے بھی ایزیلی اویلیبل نہ ہو۔ اپنے اور باہر والوں کے بیچ میں چیک پوسٹ کو کریٹ کریں، جیسے کہ بھائی، والد، والدہ اور لاسٹ میں آپ خود۔ کوئی بھی باہر والا اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو پہلے اسے بھائی، والد اور والدہ کے مرحلوں سے گزرنا پڑے، پھر آپ تک اس کی رسائی ممکن ہو سکے۔ ساتواں اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو رہا ہے یا اس کی شروعات ہے تو فوراً ایسے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، یا اگر آپ ایسے کسی مرحلے میں پھنس چکی ہیں جہاں آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں بنا وقت گوائے کھل کر ڈسکس کریں۔ اور ساتھ میں ان پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے بچے آپ کے سامنے اپنی اس طرح کی پریشانی ظاہر کریں تو انہیں ڈانٹنے کے بجائے ان کی بات کو سمجھیں اور انہیں اس پرابلم سے نکالنے میں مدد کریں۔ اپنے گھر پر سمپل فون رکھیں، اسمارٹ نہیں۔ اپنے بچوں کو کم سے کم 20 سال کی عمر کے پہلے اسمارٹ فون نہ دلوائیں۔ گھر میں اگر آپ کو اسمارٹ فون رکھنا ضروری ہے تو اس پر کنٹرولڈ ایپس ڈال کر رکھیں۔ ایسی کئی ایپس ہیں جن سے فون کے یوزیج کو بلاک کیا جا سکتا ہے یا ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اپنی بچی کو گھر میں بھی بالکل اکیلا نہ چھوڑیں۔ بچی کو کسی نہ کسی کام میں انگیج ضرور رکھیں، یعنی پڑھائی کے ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں شامل رکھیں۔ سوشل میڈیا کی کوئی
कोई भी ऐप अपने फोन में ना रखें। बच्ची के साथ बातचीत को सिंपल रखें और उससे आपसे खुलकर बात करने की स्पेस प्रोवाइड करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और बच्चों के खातिर उनके साथ वक्त गुजारें। अपनी बच्चियों को खास तौर से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाबंदी के साथ सुनाएं और समझाएं। अल्लाह की गफ्फारी के साथ अल्लाह की क़हारी सिफत का भी वक्त वक्त पर बच्चों की याद दहानी करवाते रहें। होम स्टडीज को प्रायोरिटी दें और इन स्टडीज के लिए बच्चों को फोन नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोवाइड करें ताकि उन पर वॉच रखी जा सके। हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों का स्टडी रूम उनके बेडरूम में ना हो बल्कि ऐसी जगह हो जहां बच्चे पे हर वक्त नजर रखी जा सके। बच्चों के सोने से पहले कभी ना सोएं, हमेशा बच्चों को सुलाकर ही खुद सोएं और बच्चों के उठने से पहले उठ जाएं। अपनी बच्ची की सहेलियों को भी अच्छी तरह से जांच लें और फोन पर बिना काम के सहेलियों से भी बात न करने दें। बच्ची को कभी कहीं भी अकेला ना भेजें। मखलूत तालीमी इदारों से अपने बच्चों को फौरन बाहर करें। बच्ची की दीनी तालीम पर खास तवज्जो दें। इन तदाबीर को इख्तियार करने पर इंशाअल्लाह हमारी बच्ची सेफ रहेगी। साथ ही ये भी याद रखें कि इन इकदामात को इस तरह से नाफिज न किया जाए जिससे कि ये बच्चे अपने आप को मुजरिम समझने लगे या कैद में समझें। हमेशा बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम किए जाएं। अब आते हैं उस तरफ जहां वो बच्चियां हैं जो इस ट्रैप में ऑलरेडी शिकार हो चुकी हैं। इस ट्रैप में और इन चीजों से एक बार एडिक्शन हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जो आपको इस दलदल से निकाल सकता है और वो है जिक्रुल्लाह। हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मुब्तिला रहें और जब आपको ऐसे ख्यालात आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करें और अपनी कब्र और आखिरत का तस्वुर करें और अल्लाह से दुआ करें। बेशक अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है और वही आपको इस दलदल से निकालने की हिम्मत भी देगा और ताकत भी। जितना हो सके अकेला रहने से परहेज करें। अपने पेरेंट्स से अपने परेशानियों को जरूर शेयर करें। उनको यकीन दिलाएं कि अब आप इससे बाहर निकलना चाहती हैं और उनसे मदद मांगे। फर्ज नमाजों के साथ नवाफिल को इंक्रीज करें। अल्लाह दिलों के हाल को जानने वाला है, उससे हर वक्त दुआ करते रहें। इस फितने से लड़ने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए एक आयशा ग्रुप का कॉन्सेप्ट पेश किया जा रहा है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इससे हम इस फितने से बचने में और हमारी बहनों को इस फितने के शिकंजे से निकलने में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अब हम समझते हैं आयशा ग्रुप के फॉर्मेशन और वर्किंग की प्रोसेस को। सबसे पहले अपने शहर या इलाके की कुछ लेडीज को इकट्ठा करें। इनकी क्वालिफिकेशंस में खास तौर पर कुछ चीजों का होना जरूरी है, जैसे कि पढ़ी लिखी होना, दीनदार होना, उम्मत का दर्द होना, इनके अपने रवाबित या ग्रुप्स होना, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स होना। अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हों तो उन्हें तरजीह दी जानी चाहिए। इन लेडीज की तादाद एरिया के एतबार से रखी जा सकती है। ये आपका कोर ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। अब इन लेडीज को ट्रैप की पूरी सच्चाई से आरास्ता करवाया जाए या इस सीरीज के सभी वीडियोस दिखाए जाएं ताकि वो असल हकीकत से वाकिफ हो सकें। अब यहाँ से टीम का एलॉबरेशन शुरू होगा। ये कोर ग्रुप अपने ग्रुप्स में पहले से मौजूद लेडीज में से इस काम के लिए वॉलंटियर्स को सिलेक्ट करेंगी। ये ग्रुप टीम लीडर्स का होगा। अब हर टीम लीडर को कुछ मोहल्ला अलॉट किए जाएंगे जिनमें ये टीम लीडर्स अपने ग्राउंड वर्किंग टीम को तैयार करेगी। ये जो लोकल वॉलंटियर्स की टीम तैयार होगी, इसमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि ग्राउंड वर्कर सिर्फ अपने मोहल्ले या अपने नोन एरिया में ही काम करें। एक ग्राउंड वर्कर की जिम्मेदारी में एक लेन या 2 लेन से ज्यादा ना हो। अब हम समझते हैं इसका वर्किंग प्रोसीजर, जिसमें हम बिल्कुल निचले दर्जे से यानी कि ग्राउंड टीम से शुरू करेंगे। ग्राउंड टीम का काम होगा अपने गली की हर बच्ची और औरत से कनेक्ट करना और उन पर नजर रखना। जो भी एहतियाती तदाबीर इन वीडियोस में समझाई गई हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हर बच्ची पर नजर रखें और कुछ भी मशकूक लगने पर उससे दोस्ती बढ़ाकर उस मशकूक बात की हकीकत को जाने। अगर उन्हें लगता है कि ये बच्ची ट्रैप की तरफ जा रही है या ट्रैप्ड है तो फौरन इसकी डिटेल्स अपनी मोहल्ला टीम तक पहुंचाएं और मोहल्ला टीम अपनी टीम लीड तक। किसी भी मशकूक केस को कभी भी डायरेक्टली एड्रेस नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे उस बच्ची को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उसे ट्रैप की हौलनाकी को बयान करना है। इस काम में वक्त लगेगा लेकिन इंशाअल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद है। ये कोशिश हमेशा करते रहना है कि मोहल्ले की हर बच्ची हमारे ग्राउंड टीम में शामिल हो ताकि वो अपने स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस में जाकर इस काम को अंजाम दे सके। ग्राउंड टीम का दूसरा काम होगा डेटा कलेक्शन का। एक फॉर्म बनाया जाए जिसमें आगे दिए गए क्वेश्चंस को शामिल किया जाए और इस डाटा को अपने चैनल के थ्रू कोर टीम तक पहुंचाया जाए। इसमें शामिल किए जाने वाले क्वेश्चंस हैं नेम, एड्रेस, फोन
नंबर स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है या होम मेकर है। अगर स्टूडेंट है तो कौन सी क्लास में है, और अगर प्रोफेशनल है तो जॉब कहाँ पर है और क्या जॉब है, कौन कौन से सोशल मीडिया एप्स वो यूज करती हैं, क्या उनके ऑनलाइन मेल फ्रेंड्स हैं, अगर हैं तो कितने और कौन से ऐप पर हैं, क्या वो इन ऐप्स पर लाइव चैट करती हैं, अगर करती हैं तो किनके साथ करती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ, अगर हाँ तो कितने लड़कों से करती हैं, कोई स्पेसिफिक है या कोई भी मिले उनके साथ कर लेती हैं, लाइव चैट करने का क्या रेट है, रोज, हफ्ते में या दिन में जब भी वक्त मिले, क्या उन्हें कभी अपने सोशल मीडिया वाले दोस्त से डायरेक्ट मुलाकात की है, अगर हाँ तो कितने लड़कों से और कितने दिनों में मुलाकात करती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन उनसे डायरेक्ट नहीं पूछना है, बल्कि उनके साथ रहते हुए पता करना है और आखिर में पूरी इंफॉर्मेशन को अपनी टीम लीड तक पहुंचाना है। इसके लिए गूगल फॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हायर एडमिनिस्ट्रेशन इस केस की काउंसलिंग को हैंडल करेगी और ग्राउंड टीम को नसीहत करेगी। इस तरह से हर बच्ची और लेडी के डाटा को इकट्ठा कर उसके एतबार से उस एरिया में तरगीबी और एहतियाती तदाबीर और दीगर प्रोग्राम भी प्लान किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, इस्लामिक फिका एकेडमी के फाउंडर मेंबर और दीगर कई तंजीमों के सरपरस्त, मुल्क मिल्लत के कई महाज पर पुरजोर काविशात को अंजाम देने वाले और हमारे मेंटर हजरत मुफ्ती सैयद जुनैद अहमद फलाही साहब दामत बरकातुहू की तरफ से एक अहम पैगाम को गौर से मुलाहिजा फरमाएं और इन तजावीज पर अमल करने की कोशिश को यकीनी बनाने की फिक्र करें। इस वक्त नई नस्ल और ख़ास तौर से नौखेज़ बच्चियों के मसले में सभी मज़ाहिब और सभी कौमों के माँ बाप फ़िक्रमंद हैं, और जो फ़िक्रमंद नहीं हैं उनकी औलादें ख़ास तौर से पैसे की बहुतात और सोशल मीडिया पर फैलाए हुए ये जहरीले जाल की वजह से इतने ज़्यादा हलाकत खेज़ मैदानों में कदम रख चुकी हैं कि अब उन्हें वहाँ से वापस लाना और उनको एक गिरस्त जीवन प्रदान करना और उसमें उनको संतुष्टि और इत्मीनान बख्शना ये इतना मुश्किल हो गया है कि इसके लिए आज बड़े बड़े मुहक्किकीन और ज़हीन वो लोग जो बच्चों की साइकोलॉजी पर नजर रखते हैं वो भी बेबस नजर आने लगे हैं। इस वक्त में इसके लिए जो कोशिश भी की जाए वो होनी चाहिए। खास तौर से इस्लाम ने हमें मायूसी नहीं सिखाई है, बल्कि हमें इस बात की तालीम दी है कि अल्लाह के नाम में सबसे बड़ी कुव्वत है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक की बात होती है, अल्लाह का नाम होता है, उसका पैगाम होता है, उसका खौफ दिल में बसाया जाता है और आखिरत की बात की जाती है और अपने मुस्तकबिल से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में नई नस्ल को आगाह किया जाता है, तो वो दिल पर पड़े हुए मोहलिक पर्दे कितने ही दबीज क्यों न हो आखिर में फट जाते हैं और मुस्तकबिल नजर आने लगता है और भटकते कदम राह पाते हैं। इस वक्त में इसके लिए जो कोशिशें भी की जाएं, बच्चियों की हलाकत खेज दास्तानें सुन सुन कर आज हर माँ बाप का दिल बेचैन है। इस वक्त में जो तदाबीर की जा रही हैं हम उनको बहुत ही तहसीन की निगाह से देखते हैं और इसके लिए मजीद कोशिशों की जरूरत है। सहेलियों का एक ग्रुप आयशा ग्रुप के नाम से बनाने की जरूरत है, जो सहेलियां मिलजुल कर बच्चियों को हलाकत खेज माहौल से बचाने की कोशिश करें और वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के सामने हाजिरी का ख्याल और अपने मुस्तकबिल की फिक्र और अपनी पाकदामनी का एहसास बच्चियों को फराहम करें और उन्हें हिम्मत और हौसला दें और वो जिस मोहलिक जाल में भी फंस गई हों वहां से निकालने की तदाबीर उन्हें दें और उन्हें दिलेरी, डेयरिंग और जुर्अत फराहम करें। ये इस वक्त का सबसे बड़ा काम है जो बच्चियों में किया जाना चाहिए। इसके लिए जो तदाबीर भी की जाएं, जो तदबीरें भी हो रही हैं, उनको अगर मजहबी रंग दिया जाए, उनका इस्लामाइजेशन किया जाए और उसको रूहानी तालीमात के साथ आम किया जाए। रूहानी तालीमात से मुराद तावीज़ात नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के खौफ के एहसास के साथ, आखिरत के तसव्वुर के साथ, अकीदे के साथ अगर ये बातें फराहम की जाएं तो यकीनन मुफीद और कारआमद बन सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। इस सीरीज के सभी वीडियोस की लिंक सिलसिलेवार अंदाज में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपसे दरखास्त है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोस को हर घर तक पहुंचाने की फिक्र करें। जल्द मिलेंगे आपसे है ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।